زوردار تعلیم. خدا یسوع کے خوبصورت اور بابرکت نام میں میری طرف سے بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو بہت بہت سلام. پلیز اسی طرح کھڑے رہیے گا، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، وقت آ پہنچا ہے. رات کو ہم کلام سن رہے تھے کہ وہ زمین جو خدا کے کلام کو قبول کرتی ہے بیسک میں پھل وہی لاتی ہے، برکت اسی کو ملتی ہے. شیر اور اسودہ وہی روحیں ہوتی ہیں جو خدا کے کلام کو قبول کر کے اور اپنے دل میں اس کو رکھتے ہیں، وہی پھل لاتے ہیں، وہی 100 گنا، 30 گنا اور 60 گنا پھل لاتے ہیں. اپنے لیے دعا کیجئے گا کہ خدا آپ کو برکت دے. اب میرے لیے دعا کیجئے کہ خدا پاک روح کے وسیلے سے مجھے استعمال کرے. میں کچھ نہیں، میری حیثیت کچھ نہیں، میری تعلیم کچھ نہیں، میری اسٹڈی کچھ نہیں. ہاللیلویا. میں ناتواں ہوں، میں کمزور ہوں، لیکن خدا کی شان میری کمزوریوں کو دور کر کے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. اور وہ جلال خدا یسوع کو ملے. خدا قادر مطلق آسمانی اچھے اور میرے باپ، میں شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت کے لیے جو آپ نے مجھے اور حاضر جماعت کو دیا ہے. خدا اس سے پہلے کہ میں کلام کے اس حصے کو جو آپ نے مجھے دیا ہے ان روحوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ڈلیور کروں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں کچھ نہیں، میری حیثیت کچھ نہیں، میری کمزوری میں میری شاذوری بنی ہو. میرے خدا میری زبان، میرے ہونٹوں کا ذمہ لیجیے. میں اقرار کرتا ہوں کہ میں کم ہوتا جاؤں اور آپ کا پاک روح بڑھتا جائے. عزت، جلال، بزرگی، حشمت آپ کو، آپ کے بیٹے کو اور آپ کے پاک روح کو ملے. مانگتا ہوں خدا یسوع کے خوبصورت اور بابرکت نام سے. آمین. آمین. پلیز بیٹھ جائیے گا. بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. بچے سامنے آئے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس سنڈے اسکول کی ٹیچر نہیں. اشرف پلیز اگر آپ بچے کٹھے رہیں گے نا پلیز، اگر آپ پلیز تھوڑا سا آگے شروع ہو. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ سب ٹھیک ہے؟ آپ خوش ہیں یار؟ بولے کرو. آپ خوش ہیں نا؟ آدش آواز نہیں آئی. آپ خوش ہیں؟ بجے ناشتہ کرتا ہے؟ خوش ہیں؟ نہیں سارا نہیں بتا. اونچی آواز سے خوش ہیں جی، اونچی آواز. مجھے آواز نہیں آتی، ماما کو آواز. خوش ہیں؟ ہاللیلویا. خدا نا کو ویری گڈ. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ سنڈے اسکول کا سلسلہ عبادت میں جاری رکھیں گے تاکہ بچے بھی کچھ سیکھ سکیں. جی وزڈم آپ آگے آ جائے گا. وزڈم پچھلے سنڈے میں نے ایک جاب دی تھی، ایک سٹوری آپ کو بتائی تھی، وہ ریپیٹ کیجیے گا. 2 سیکس تھے. نہیں ادھر دیکھیں، میری طرف نہیں پلیز دیکھنا، ادھر ایک منٹ چلے. 2 سیب تھے. نام مجھے یاد. کون تھے 2؟ سیب. اچھا سینٹ. آگے. اور ایک عورت تھی جو غلط کام کرتی تھی، غلط کام سے پیسہ لیتی تھی. وہ 2 سینٹ ہمیشہ جاتے تھے. ایک بار انہوں نے اس کو دعا کی تو اس کے اندر سے کال نکل گئی اور وہ اچھی ہو گئی. اچھی، بہت اچھا. تالیاں. بہت ہی اچھی طرح. میں آپ ایک چیز ایڈمٹ کریں گے کہ سامنے آنا اور بیان کرنا یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے. وزڈم کے لیے بہت خوبصورت پائی. تھینک یو. جی
अच्छा زینا کی بھی تحقیق ہے. میں نے جو ایک اور آپ کو کام دیا تھا کہ جو لوگ نہیں آئے, جو بچے نہیں آئے, آپ نے تو کیا کرنا ہے, فون کر کے آپ نے کس کو بتایا ہے زینا آپ نے میں آنے میں سے نہیں کرتی ہوں دیکھو گے تو میرے تمہارا. اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز میں نے سیکھی ہے, ایک جیسی پول لگے, بھولتا وہ کام ہے جس کی پرواہ نہیں, حکم کی عدولی اس کی ہوتی ہے جس کی پرواہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ میرے منہ تایا اچھی بات نہیں. جو جاب دی جاتی ہے, جو کام دیا جاتا ہے, پلیز اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, ساتھ انجام دینا. یہ تو بچوں یہ سیکھنے کی عمر ہے, یہ ٹریننگ ہے آپ کی. اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو کبھی بھی نہیں سیکھ. جو کچھ ایسے ہی آپ کو نہیں کہہ دیتے. اب غور سے سنیے گا, میں نے جو کلام کا حصہ خدا نے میرے منہ میں رکھا ہے اس کو میں نے اس ترتیب سے تیار کیا ہے تاکہ اس میں سنڈے اسکول کے بچوں کو بھی حصہ مل سکے. غور سے سنیے, اگلے سنڈے پوچھا جائے گا. اگلے سنڈے کیا ہوگا, پوچھا جائے گا. تیاری کر کے آئیے گا, کوئی رعایت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا, خداوند یسوع مسیح زمین پر. کہاں ہے خداوند یسوع مسیح؟ کب؟ آج سے 2000 سب بولے, آج سے 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح زمین پر. ٹاپک میرا یہ ہے, خدا زمین پر. ہاں جی, کون؟ خدا زمین پر. نتیجہ کا نکلا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ سب بولیے, خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا. بولو یار, خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے. زینا دلیری کے ساتھ, کوئی بھی آپ کو اسکول میں پوچھے, دلیری کے ساتھ بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ 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 خدا ہے. آج ہم اس ٹاپک کو بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ بچے بھی اس چیز کو سیکھ سکیں. بہنوں, اگر آپ کے پاس گواہی ہو, کوئی پوچھے تو اس کو دلیری کے ساتھ, دلیری نہ چچکنا ہے گا. یسوع مسیح خدا ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے. نکالیے میرے ساتھ ایک حوالہ, یوحنا رسول کی انجیل, اس کا آخری باب, اس کی آخری آیت. یوحنا رسول کی انجیل, اس کا آخری باب, اس کی آخری آیت. جی رضا بھائی. اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے, اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے. ہاں جی سوری, اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع مسیح نے کیے, اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے. ہاں جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی, کوئی لائبریری نہ بنتی. لیکن یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں یہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہیں, اور آج کچھ باتیں آپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی شیئر کروں گا جس سے واضح ہوگا, جس سے ثابت ہوگا, جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ خداوند یسوع مسیح زمین پر کیا ہے؟ بولیے یار, خداوند یسوع مسیح زمین پر کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح زمین پر کیا ہے؟ خدا ہے. آج غور سے سنیے گا, یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی ضروری ہے پتہ ہونا کہ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, وہ ہے کون؟ میرے عزیزوں, میرا اور آپ کا آقا رب الجلیل, قادر مطلق, رب العالمین, آسمان کا تخت نشین, زمین
लेकिन आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया। कुल इख्तियार उसके पास था, कुल इख्तियार उसको दिया गया, और वही इख्तियार उसने अपने शागिर्दों को क्या किया है? ट्रांसफर किया है। अपने शागिर्दों को ट्रांसफर किया और उनको कहा कि जाकर सारी दुनिया में इस बात की मुनादी करो कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार क्या दिया गया है? मुझे दिया गया है, और वही इख्तियार मैं किसको देता हूं? तुमको देता हूं। ये जो वादा था, ये खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ किया। आज का वादा मेरे साथ, आपके साथ और चर्च के साथ है, ऐसा ही। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर होते हुए कुल इख्तियार रखते थे। उनके पास कुल इख्तियार था, और उनका जो इख्तियार था, पाक कलाम इस चीज को बयान करता है कि उनका जो कलाम था वो भी लोग मानते थे कि ये साहिब इख्तियार की तरह क्या करता है? मौजे तो छड़ दो, मौजे तो देखने में आते हैं, लेकिन उसका कलाम भी जो था वो भी क्या था? इख्तियार के साथ मामूल था। जो उसके मुखालिफिन थे, खुदा यीशु मसीह के अपोजिट जो फिरके थे, जो उसको अच्छा नहीं समझते थे, वो भी क्या कहते थे? वो भी कहते थे कि हमने ये बात फलां से सुनी, फलां से सुनी, और फलां ने किससे सुनी? मूसा से, और मूसा ने लिखा और हम उसको क्या करते हैं? मानते हैं। लेकिन मेरे यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। एक और क्या कहा? अगर तू चाहे ठीक करे, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं चाहता हूं। किसने? मैं, यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। पूछने की गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर इंसान नहीं बल्कि खुदा की हैसियत से मौजूद था। इस वजह से उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। मेरे अजीजों, विषयों वाले हैं, बहुत सारी चीजें बता सकता हूं जो खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को क्या करती हैं? बयान करती हैं। आज तक कोई बंदा पानी पे नहीं, लेकिन मेरा यीशु, मेरा आका पानियों की सतह के ऊपर क्या कर रहा है? ये काम किसका है? किसी इंसान का? किसी बशर का? किसी नबी का? नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का काम है। खुदा का काम है, और यीशु मसीह जमीन पर खुदा की तरह, खुदा की हैसियत से क्या कर रहे थे? जिंदगी बसर कर रहे थे। आगे आसमान पर जो मुकद्दसीन फरिश्ते हैं, जो मुकद्दस फरिश्ते हैं, वो खुदा की इजाजत के बगैर ट्रैवल नहीं करते। कलाम बयान करता है कि वो खुदा के मुबारक चेहरे की तरफ देखते रहते हैं कि कब हुक्म सादर हो और हम जाकर जमीन पर खिदमत गुजारों की क्या करें? हिफाजत करें, उनकी मदद करें। लेकिन मेरे अजीजों, किसके हुक्म के मुहताज हैं? खुदा। गैथसेमनी में क्या हुआ? अगर मैंने जंग ही करनी है, अगर मैंने मुकाबला ही करना है, तो मैं कितने फरिश्तों को? 12 तुमन फरिश्तों को हुक्म करो तो वो क्या आ जाएंगे? जमीन आसमान से छोड़कर जमीन पर आ जाएंगे। और ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है, किसी इंसान के पास नहीं। मेरे अजीजों, ये चंद चीजें बातें मैंने बच्चों के साथ वादा किया है कि मैं उनके साथ ज्यादा टाइम गुजारूंगा। खुदा यीशु मसीह झील में हैं, शागिर्द कश्ती में हैं, और होता क्या है कि झील में बहुत बड़ा क्या आ जाता है? तूफान आ जाता है। पहली कहानी सुनिएगा, गौर से सुनिए, अगले संडे क्या होगी? रिपीट होगी। मैंने बच्चों के लिए लिखी हैं 1 2 3 4 स्टोरीज लिखी हैं। 4 मौजज़ात खुदा यीशु मसीह के लिखे हैं जो
बयान करेंगे कि खुदा यीशु मसीह जमीन पर खुदा। अच्छा, अब क्या है, तूफान आ जाता है, यीशु मसीह पिछली गद्दी पर सोए हुए हैं। गौर से सुनिए बच्चों, यीशु मसीह क्या है, जमीन पिछली गद्दी पर क्या हो रहे हैं, सोए हुए हैं, और कश्ती जो है वो किनारे की तरफ चल रही है, लेकिन यकायक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। शागिर्द जो है वो चाहते हैं कि किसी तरह से मेहनत मशक्कत करके हम क्या करें, किनारे पर पहुंच जाएं, लेकिन तूफान इतना बड़ा है कि उनको जाने नहीं दे रहा, उनको रोक रहा है। वो आखिरकार उस्ताद को हिलाते हैं, खुदा यीशु मसीह को हिलाते हैं और कहते हैं, ए उस्ताद, हम क्या है, मरे जा रहे हैं। खुदा यीशु मसीह उठकर कहते हैं कि तुम्हारा ईमान कहां है। कहने का मतलब यीशु मसीह का ये था कि अगर तुम इस तूफान को डांटते, इस तूफान को हुक्म देते, तो इस तूफान में क्या हो जाना था, थम जाना था, रुक जाना था। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह उठे हैं तो उन्होंने तूफान को क्या किया है, डांटा है, पानी को क्या किया है, डांटा है। और कलाम में साफ साफ लिखा है कि पानी और हवा और तूफान थम गए। किसकी वजह से, खुदा यीशु मसीह के हुक्म की वजह से। खुदा यीशु मसीह जमीन पर उसके हुक्म पर जो थी, कायनात की हर चीज उसके कंट्रोल में थी और नेचुरल भी उसके कंट्रोल में थी। क्यों? क्योंकि वो जमीन पर यीशु मसीह खुदा की सूरत में इंसानों के दरमियान रह रहा था। और लोग कहते हैं कि ये कौन है जिसका हुक्म हवा और पानी भी मानते हैं। विजडम, अंडरस्टैंड, ये कौन है जिसका हुक्म हवा और पानी भी मानते हैं। हवा और पानी सिर्फ और सिर्फ खुदा का हुक्म मानते हैं। पुराने अहद में आपको पता है, खुदा ने मूसा के जरिए बहरे कुलजुम को क्या किया है, दो हिस्सों में तकसीम किया। पानी ने हुक्म माना, खुदा का हुक्म माना और बनी इस्राएल को जगह दे दी। और खुदा यीशु मसीह जमीन पर खुदा की हैसियत से मौजूद हैं और उन्होंने हवा और पानी को क्या किया है, थमा दिया है। बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, कोड़ी कितने हैं, 10। खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारे पाक कलाम में कोड़ियों को क्या की है, शिफा दी है। खुदा यीशु मसीह ने कोड़ियों को अच्छा किया, लेकिन किसी कोड़ी को ये नहीं कहा कि जाकर अपने ताई को, लेकिन ये 10 कोड़ी हैं। इधर लिखा है जब इनको अच्छा किया गया, इनको हुक्म मिला, गौर से सुनिएगा, जब इनको हुक्म मिला, इन्होंने अर्ज की कि हमें अच्छा कर दे, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जाकर अपने ताई क्या करो, बहन को दिखाओ। क्यों? वजह क्या थी? यीशु मसीह को हुक्म, यीशु मसीह ने हुक्म क्यों किया कि जाकर अपने आप को, बहनों को क्या करो, दिखाओ। इसकी मैं थोड़ा सा पस मंजर आपके साथ पेश करना चाहता हूं। निकालिए मेरे साथ अहबार की किताब, उसका 13वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा बच्चों। पुराने अहदनामा में अहबार की किताब, उसका 13वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक तिलावत की जाएगी। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, अगर किसी के जिस्म की जिल्द में वाम या पीली या सफेद चमकता हुआ दाग हो और उसके जिस्म की जिल्द में कोढ़ सी बला हो, तो उसे हारून काहिन के पास या उसके बेटों में से जो काहिन है किसी के पास ले जाएं। हाँ जी, किसके पास ले जाएं? गौर से सुनिएगा, किसके पास ले जाएं? काहिन के पास, मौजूदा हारून और उसकी औलाद के पास जाएं और वो काहिन तस्दीक करे कि ये कोड़ी है। तो फिर क्या आगे जी? और काहिन उसके जिस्म की जिल्द को, बला को देखे, अगर उस बला की जगह के बाल सफेद हो गए हों और वो बला देखने में खाल से गहरी हो, तो वो कोढ़ का मरीज है। हाँ जी। और काहिन, अच्छा सॉरी, टाइम थोड़ा है, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, प्लीज कर दीजिएगा। हाँ जी, अहबार की किताब में खुदा ने हुक्म दिया
किया कि अगर किसी को ये बीमारी लग जाए तो वो किसको जाकर दिखाए? काहिन को दिखाए, काहिन उसका मुलाजा करे, काहिन उसको देखभाल करे, काहिन जो है उसको देखकर फतवा दे, कहे कि ये कोढ़ है। जब ये कोढ़ का फतवा उस पर दिया जाए, कंफर्म हो जाए, तो फिर उसके साथ सलूक क्या किया जाए? निकाल। हाँ जी रजा भाई प्लीज पढ़िएगा 13वां बाब 45 46 में। हाँ जी गौर से सुनिए, फिर उसके साथ करना क्या है जी। 45 46 में 13वां बाब। और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो, उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहे। हाँ जी क्या है पहली कंडीशन? उसके कपड़े क्या हो? फटे और उसके सर के बाल बिखरे। हाँ जी आगे। और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके, अपने ऊपर के होठों को क्या करे? ढांके आगे। और चला चला कर कहे नापाक नापाक। हाँ जी कहना उसने क्या है? चिल्लाना उसने है, और चिल्लाकर कहना क्या है? नापाक नापाक। हाँ जी आगे। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे, वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक। हाँ जी बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो। बाहर हो। ये तो आपको स्टोरी यहां तक समझा है। लेकिन अगर उसका मर्ज जाता रहे, वो ठीक हो जाए, तो उसकी जो कंफर्मेशन है वो किसने करनी है? काहिन ने करनी है। काहिन के पास दोबारा वो आए और दिखाए, और काहिन उसका मुलाजा करे, फिर उसको क्या करे? कंफर्म करे, और वो क्या किया जाएगा? लश्करगाह में या दोबारा शहर में वापस आ सकता है। मेरे अजीजों कोढ़ी कितने हैं? 10 लिखा नहीं, लेकिन मैं जब स्टडी कर रहा था तो मैंने कहा कि मैं जरूर चर्च के साथ ये बयान करूंगा कि जो 10 कोढ़ी हैं, मुमकिन है कुछ कोढ़ी 2 साल पहले काहिन ने तस्दीक कर दी, 3 कोढ़ियों को 1 साल पहले, 4 कोढ़ियों को हाँ जी रजा भाई मुमकिन है 6 महीने पहले। मुमकिन है इनमें से 1 या 2 कोढ़ियों को काहिन ने कंफर्म किया है उसी दिन कि तुझे क्या है? कोढ़ है, तू क्या कर शहर से बाहर चला। गौर से सुनिए यीशु मसीह ने क्यों कहा? मेरे अजीजों जब यीशु मसीह ने उसको बोला उन 10 को कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखाओ, और जब काहिन ने उनको देखा जो 2 साल पहले, नो प्रॉब्लम, ये वक्त के लिहाज के साथ क्या हो गया है? ठीक हो गया है। 6 महीने पहले नो प्रॉब्लम, लेकिन जब उसने उसको देखा जो उसी दिन उसके पास आया है, और पास आया है और कोढ़ कंफर्म हुआ है, और काहिन ने उसको कहा है बाहर चला जा, लश्करगाह से, शहर से बाहर चला जा, फाटक से बाहर चला जा, और जब वो उसी दिन काहिन के पास गया है, तो वो अजीजों जरूर उससे पूछता होगा, कहता होगा कि ये कौन है जिसने तुझे हुक्म दिया है या तुझे अच्छा किया है? और वो कहता होगा कि ये कोई और नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह है जो जमीन पर खुदा की सूरत में मौजूद है, उसी ने मुझे ठीक किया। और मेरे अजीजों यीशु मसीह खुदा की सूरत में जमीन पर क्या थे? मौजूद थे। आज बच्चों पहला क्या था? तूफान, दूसरा क्या है? कोढ़ी, और तीसरा 4 दोस्त हैं। हाँ जी कितने दोस्त हैं? उनका एक दोस्त है जो मफलूज है, उनका एक दोस्त है जो बहुत ही मुद्दत से चल नहीं सका, चारपाई पर लेटा हुआ है। और जब उसके दोस्तों ने देखा कि यीशु मसीह हर एक मर्ज को क्या करते हैं? ठीक कर देते हैं, तो उन्होंने उनको इरादा बांधा कि हम इसको यीशु मसीह के पास क्या करेंगे? हाँ जी क्या करेंगे? यीशु मसीह के पास लेकर जाएंगे। और यीशु मसीह शहर में किसी घर में क्या करा रहे थे? इबादत करा रहे थे। उस शहर में जिस घर में वो मौजूद थे, भीड़ ज्यादा थी, लोग ज्यादा थे, घर छोटा था, वो यीशु मसीह तक पहुंच नहीं सकते थे। हाँ जी ना,
वो याद रखना इसी तरह अगले संडे बताएंगे। वो यीशु मसीह तक पहुंचे नहीं सकते थे, फिर उन्होंने तरकीब क्या निकाली कि हम क्या करेंगे, छत को खोल देंगे, छत को उधेड़ देंगे और इस मरीज को क्या करेंगे, लटका कर यीशु मसीह के कदमों में रख देंगे। हुआ ऐसे, उन्होंने छत को खोला, छत को खोलने के बाद उस मरीज को क्या किया है, यीशु मसीह के कदमों में रख दिया। जब यीशु मसीह ने उसको गौर से देखा तो सबसे क्या बोला है, किसी को याद है बच्चों, बेटा तेरे गुनाह, बेटा तेरे गुनाह, पाकलाम में लिखा है, बकतरी में पढ़ो, पाकलाम में लिखा है कि जो उधर फक्की और फरीसी बैठे हुए थे, उन्होंने अपने दिल में ख्याल किया, वो अपने दिल में सोचने लगे कि खुदा के सिवा कोई गुनाह मुआफ नहीं कर सकता। ये कौन होता है जो गुनाह मुआफ कर सके? अब बात तो कर दी यीशु मसीह ने, अब आंसर, सवाल का जवाब गौर से सुनिएगा, कितना खूबसूरत जवाब है। यीशु मसीह ने कहा आसान क्या है? हाँ जी, ना आसान क्या? ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि अपनी चारपाई उठा और तो यार यीशु मसीह ने उस मफलूज से कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल, और वो उसी दम 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, अगली दिन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बल्कि पाकलाम इस बात की शहादत देता है कि वो उसी दम उसी वक्त क्या किया है, उठा है। ठीक है ना अपने दोस्तों, अच्छा कोई चौक लो, हाँ जी, हाँ जी, ताकत है खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार में, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में कुव्वत है। और उसी वक्त को उठा और अपनी चारपाई को उठाकर क्या करना कर दिया, चलना शुरू कर दिया। गौर से सुनिएगा, ये स्टोरी बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। आगे तशरीह, वो बीमार है, पता नहीं कितने अरसा से है, उसके रिश्तेदार उसको जानते हैं, उसके अजीजो कारब उसको जानते हैं, उसके दोस्त और अहबाब उसको जानते हैं, उस मोहल्ले और गली के लोग उसको जानते हैं। और जब वो नाचता हुआ कूदता हुआ खुशी के साथ, खुशी और हाली के साथ वो अपनी चारपाई उठाकर जाता होगा, तो लोग पूछते होंगे कि भाई ये क्या इनकलाब आ गया है, ये क्या हो गया है, और ये क्यों ऐसा हुआ है, तू किस डॉक्टर के पास गया है, कौन सा डॉक्टर है जिसने तेरे जोड़ों और पट्टों को ठीक कर दिया है? उसने कहा होगा कि वो डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम, तबीबों का तबीब, और क्या है मेरे अजीजों मुआलिजों का मुआलिज है, उसने मुझे ठीक किया है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो जिसने मुझे ठीक किया है वो खुदा है जो जमीन पर है, और उसी ने मुझे चंगा किया और अच्छा किया और मैं चलने के काबिल हो गया। तीसरी मुआजिजा आपके साथ बयान किया, कोई शख्स, कोई डॉक्टर भी जो मफलूज है उसको दुरुस्त नहीं कर, जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी कर लो, अगर होगा भी तो बहुत ही देर लगेगी, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि तूने ये नहीं करना, तूने पानी नहीं खाना, तूने बोझ नहीं उठाना। लेकिन जो पाकलाम लिखा है एकदम यीशु मसीह ने उसको करके अपनी चारपाई उठा और चल। मेरे अजीजों, आदिश अभी हमने क्या सीखा है? कौन सा मौजूदा खुदा ने यीशु का सीखा है? मफलूज का। अभी तो छुट्टी है, अभी तो बचत है, अगले हफ्ते बचत नहीं हुई है। हाँ जी, कौन सा मौजूदा सीखा है? नहीं, आप सिर्फ ये बता देंगे मफलूज का, बस मुझे याद। हाँ जी, पैरालाइज था, वो पैरालाइज था, यीशु मसीह ने उसको क्या दिया? शिफा दी। हाँ जी, 4 दोस्तों का मफलूज था, और जी चलिए आपकी बचत है, आप बच्चे छोटे। हाँ जी, हाँ? मफलूज का अगला जो मौजूदा खुदा यीशु मसीह ने दिया है वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो भी कह सकता है जो खुदा है।
लाजर की आपको स्टोरी बहुत अच्छी तरह याद है, और मेरे अजीजों, उसकी बहनों ने पैगाम भेजा कि तेरा दोस्त जिसे तू अजीज रखता है वो क्या है, बीमार है, और आ और उसको क्या कर, शिफा दे दे, उसको अच्छा कर दे, उसको चंगा कर दे। लेकिन गौर से सुनिए, खुदा यीशु मसीह पाक कलाम में लिखा है कि 4 दिन बाद उधर आते हैं जब लाजर मर गया। फकीर और फरीसी और जो यहूदी थे और शरा के जो आलम थे, उनकी सोच थी, उनकी रवायत थी, उनकी जो गलत फहमी थी, उसको खुदा यीशु मसीह दूर करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने याइर की बेटी को जिंदा किया उसी दिन, खुदा यीशु मसीह ने बेवा के बेटे को जिंदा किया उसी दिन, खुदावन यीशु मसीह ने और मुर्दे को जिंदा किया उसी दिन। लेकिन यहूदी ये कहते थे कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसकी रूह कितने दिन तक, ऊंची बोलिए, वेरी गुड, 3 दिन तक घूमती रहती है, गर्दिश करती रहती है, और वो रूह कभी भी उसमें वापस आ सकती है और बंदा जिंदा हो सकता है। यीशु मसीह ने उनके फलसफे को, उनकी गलत फहमी को, उनकी रस्म को गलत साबित करने के लिए 4 दिन बाद यीशु मसीह ने इसको किया है, लाजर को जिंदा किया। मेरे अजीजों, पाक कलाम में अगर हम मरियम, मार्था और यीशु मसीह की गुफ्तगू को देखें तो वो कहती है कि ए मालिक, ए उस्ताद, ए रब्बी, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। खुदा यीशु मसीह ने कहा ईमान रख, भरोसा रख, वो क्या करेगा, जिंदा हो जाएगा। मरियम क्या, मार्था क्या कहती है, हाँ जी सब बोलिए, क्या कहती है, क़यामत के दिन जिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह की कोई बड़ी बात नहीं है, सबने जिंदा होना है क़यामत के दिन, और ये भी क़यामत के दिन जिंदा हो जाएगा। चलिए पढ़ लिया आगे यीशु मसीह का आंसर, खूबसूरत आंसर पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 25वीं आयत। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 25वीं आयत, यीशु मसीह का आंसर। चलिए आप पहले पढ़िए, 23 में शुरू कर लीजिए। यीशु ने उसे कहा, यीशु ने उसे कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। हाँ जी। मार्था ने उसे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। हाँ जी, क़यामत में कब, आखिरी दिन। आखिरी दिन से मुराद उसने ये कहा है कि उस वक्त तो सारे ही मुर्दे क्या किए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे, और ये भी जिंदा हो जाएगा। लेकिन आगे यीशु मसीह ने क्या कहा जी, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। हाँ जी। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा कह सकता है। यीशु मसीह जो उस वक्त जमीन पर खुदा की सूरत में मौजूद था, उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है कभी भी ना मरेगा, नहीं मरेगा। हाँ जी, हमारा टॉपिक क्या है, मसीह ही खुदा है। मसीह क्या है, खुदा है। साबित हुआ, बहुत सारी दलीलें हैं, बहुत सारे हवालाजात हैं, बहुत सारे मुआजिज़ात हैं जो खुदा यीशु मसीह को इस बात पर साबित करते हैं कि खुदा यीशु मसीह जमीन पर क्या है, खुदा है। लेकिन मैसेज की नोयत और बच्चों की सोच के मुताबिक ये 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपने याद रखनी है। मेरे अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह इस जमीन पर थे, उसको बहुत सारे जो शरा के आलम, बहुत सारे जो फक्की और फरीसी, बहुत सारे जो बाइबल मुकद्दस और शरीयत के ठेकेदार थे, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को खुदा कबूल नहीं किया।
نہیں کیا. وہ مختلف ٹوٹکے لوگ دے رہے ہیں, وہ مختلف چیزیں بیان کرتے رہے ہیں. میں نے شروع میں ایک آیت بولی تھی کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار کیا دیا گیا ہے, اور یہ اختیار میں کن کو کرتا ہوں؟ تمہیں دیتا ہے. دو یہ آپ نے یاد نہیں کرنے, چار چیزیں صرف آپ نے یاد رکھنی ہیں, چار موڈ سے. دو واقعات ہیں جو اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا, اور وہ خدا اپنے لوگوں میں کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے. اعمال کی کتاب 3 باب, جنم کا لنگڑا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ہیکل کے سامنے. پترس, یوحنا اور یعقوب اس کو دیکھ کر غور سے کیا کہتے ہیں؟ اس میں ایمان ہے, شفا پانا. وہ مانتا ہے سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں, لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دیے دیتے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل. اور پاک کلام میں لکھا ہے, صاف صاف لکھا ہے, پترس رسول اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ ہم نے اپنی لیاقت, اپنی خوبی, اپنی عقل یا اپنی کوشش کے ساتھ نہیں کیا, بلکہ خداوند یسوع مسیح جو تمہارے درمیان خدا کی صورت میں پھرتا رہا, رہتا رہا, اسی نے ہمیں اختیار کیا ہے, اور ہم نے اس کو کیا کیا ہے؟ اچھا اور چلایا. نمبر 2, پولس رسول کلام سنا رہا ہے اور غور سے ایک شخص کو دیکھتا ہے, اور اس شخص جو ہے وہ بھی جنم کا لنگڑا ہے. اور پولس رسول دیکھتا ہے کہ اس میں کلام اس نے سنا ہے اور اس میں ایمان پیدا ہو گیا ہے شفا پانے کے لیے, اور اس نے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے اس کو کہا اٹھ, اور وہ اٹھ کر چلنا پھرنا شروع ہو گیا. اور وہاں کے جو پجاری تھے, وہاں کے جو لوگ تھے, انہوں نے کہا دیوتا زمین پر کیا کیا ہے؟ اتر آیا ہے. کس کو کہا؟ اب اس کا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا کہ میں دیوتا ہوں. دیوتا سے ان کا مراد کیا تھی؟ خدا. ان کا مراد کیا تھی؟ خدا. اس نے کہا بھائی میں دیوتا. اگر دیوتا ہے, اگر خدا ہے, وہ ہے جو آپ کے درمیان 3.5 سال خدمت کرتا رہا اور زمین پر پھرتا رہا خدا کی صورت میں, اور اسی کی صورت میں وہ پھرتا رہا, اور اسی کے نام سے میں نے اس کو کیا کیا ہے؟ چنگا اور اچھا کر دیا. میرے عزیزو, حاصل کلام آج کا یہ ہے, فقی اور فریسی خداوند یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے. فقی اور فریسی اور شرع کے عالم یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے. آج کے دور میں فقیوں اور فریسیوں کی طرح لمبے لمبے چوگے پہننے والے, لمبی لمبی داڑھی رکھنے والے, شرع کے عالم, شرع کے معلم, اور ان کے جو کالم نگار ہیں, ان کے جو لکھاری ہیں, وہ اپنے رسالوں میں, اپنی اخبارات میں, اپنے کالموں میں اور لکھتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے متعلق لکھتے ہیں, اور ان کے جو شرع کے عالم ہیں, شرع کے جو معلم ہیں, شریعت پڑھانے والے ہیں, وہ ٹی وی پر, وہ فیس بک پر, وہ ٹویٹر پر اور وہ سوشل میڈیا پر اس بات کو چلا کر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو اگر ہم نہیں مانتے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے, ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نبی تو ہو سکتا ہے, ایک معلم تو ہو سکتا ہے, ایک معجزے دکھانے والا تو ہو سکتا ہے, ایک نبی تو ہو سکتا ہے, ایک شفا دینے والا تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا. میرے عزیزوں, آج بچوں کو بتانے کا مقصد یہی ہے, میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں, ہم ہی نہیں مانتے بلکہ ہماری نسلیں, ہمارے آنے والے بچے بھی اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے. خداوند یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. یقین رکھیے کہ یسوع مسیح زمین پر کیا تھا؟ خدا تھا. یسوع مسیح آسمان پر کیا ہے؟
اور یسوع مسیح جب آئے گا اس وقت بھی وہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حیثیت سے آئے گا. میرا اور آپ کا ایمان یہی ہے. اور میرے عزیزوں، آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ یسوع مسیح کوئی کامن پرسن نہیں. خداوند یسوع مسیح کوئی ایوی نہیں. خداوند یسوع مسیح عرش کو چھوڑ کر زمین پر آئے اور خدا زمین پر آ کر اس نے کیا کیا ہے؟ انسانوں نے سکونت دی ہے. خداوند خدا آپ کو اور مجھے اس کلام کے سلسلے سے برکت دے. آمین.